In the previous lecture, we discussed about the operator. What is the definition of operator? Then types of operator. That first operator, that is arithmetic operator. So how many operands that are required in case of arithmetic operator, that we know. If we want to perform addition, multiplication, subtraction, division, or even modulus, we require the two operands, and with the help of that two operands and the operator, we will manage to calculate a specific result as an output, right? Later on, second type of operator that we discussed earlier, that is relational operator. In case of that relational operator, we are defining few operators like less than equal to, greater than equal to, is equal to, and is not equal to, right? So when we are comparing two things with each other, in that case we will observe that is equal to is used. For that we have studied the examples like age of a person A and age of a person B. If we want to say that the A is equal to B, अगर हम ये बोलते हैं कि A की वैल्यू A का जो एज है that is equivalent with the B. So if their age is 35 and it is equivalent with the B's age, that is 35, we will never write it like is it the paint screen is visible? A equals to B. So whenever we say that A equals to B, it means that the value of a B will assign to the A. ठीक है, तो A की जो वैल्यू रहेगी वो चली जाएगी, जो भी है, अगर जीरो होंगी तो वो भी चली जाएगी, या फिर गार्बेज वैल्यू होगी तो वो भी चली जाएगी when we use the equal single equal sign. But when we say that A equal to means A is equal to, ठीक है, डबल इक्वल हम यूज अगर करते हैं, इट मीन्स दैट द बोथ द वेरिएबल्स A and B will have similar value, either it is 35 and this is also 35, right? So when we just say that in a cricket match there is a tie हो गया हम बोलते हैं ना जनरली क्रिकेट मैच में, तो वनडे T20 या फिर टेस्ट में तो जनरली टाई नहीं होता है मोस्टली, क्योंकि ऐसा कभी देखा है किसी ने कि टेस्ट में टाई हुआ है? एनी इंसिडेंट्स दैट यू नो? 5 दिन की जो टेस्ट क्रिकेट होती है, हाँ बारिश आ गई तो हो जाता है, या फिर वो उसमें भी वो डकवर्थ लुइस का जो रूल है वो अगर क्या वो जो भी पैटर्न रहता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट द टेस्ट क्रिकेट, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वनडे एंड T20 मैचेस और रणजी मैचेस, इवन इफ रणजी भी आई गेस कसो मैंने ये टेस्ट मैचेस ही रहते हैं, 5 दिन की शायद रहते हो. सो द केस इज व्हेन द स्कोर ऑफ अ one team is exactly equal to the score of another team, opponent team. In that case we can say that equal to means is equal to operator that we can use, which is a relational operator. But if the score is less than or greater than the given value, so अगर 200 का टारगेट है और वो 200 से नीचे अगर रहते हैं तो वो हार जाते हैं, और 200 के ऊपर रहते हैं तो जीत जाते हैं. So for that we use the greater than sign or less than sign as an operator, right? So with the help of that relational operator we can say that relation can be established in between the two values or the two operands, right? Now later on when we are saying that the relation is correct means it is a true, and when it is a incorrect it is a false. So same kind of things that we can use in order to find out that whether who is elder and who is younger in between the two brothers sisters, इन दोनों के बीच में, यानी
दो भाइयों के बीच में, दो बहनों के बीच में, या फिर भाई बहन के बीच में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये अगर हमको फाइंड आउट करना है, सो वी रिक्वायर द वैल्यूज। वैल्यूज मीन्स एज ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन्स, ठीक है, ए और बी का हमको एज लगेगा। इफ वी नो द एज, then we can easily identify with the help of a program, C program, that the A is younger or elder, or B is younger or elder, right? So here we have some examples. A simple relational expression that we can say that contain only the one relational operator and takes the following form, that AE1 relational operator AE2. It is simple as A greater than B। तो ये A और B जो है that is treated as AE1 or AE2. These are the arithmetic expression or variables which we can say, but in between them this greater than sign, in between them this greater than sign. Now is it visible clearly? हाँ, एक्चुअली पहले थोड़ा फॉन्ट कम था, आई डोंट थिंक सो दैट वो विजिबल होता होगा। सो ग्रेटर देन साइन इज व्हाट? अ रिलेशनल ऑपरेटर। सो वी कैन पुट ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड वन थिंग इज मोर, that when we are saying that greater than equal to less than equal to in normal term, and generally हम उसको represent ऐसे करते हैं, greater than this, less than this। तो ये कंसेप्ट और ये आइकॉन्स आपके कीबोर्ड में भी नहीं है और ना ही सी लैंग्वेज को इसके रिलेटेड पता है। सो देयर इक्विवेलेंट वर्जन इज greater than equal to like this, and less than equal to, right? So we don't have to use the particular sign which is represent in normal case। नॉर्मल केस में जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डिवीजन को भी आप रिप्रेजेंट करते हो लाइक दिस, ठीक है, तो बट हमारे कंप्यूटर में हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए स्लैश, राइट? नाउ इन दिस केस AE1 and AE2, these are the two variable we can say that, or arithmetic expressions which may be simple constants or variables or the combination of them, okay? Given below some of the examples of simple relational expressions are 4.5 less than or equal to 10, ठीक है। नाउ व्हेन वी से द लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, द मीनिंग ऑफ लेस देन और, ठीक है, और मीन्स दो में से एक चीज भी अगर ट्रू होती है तो हम उसको ट्रू कंसिडर करेंगे एज पर द लॉजिक ऑफ अ ट्रूथ टेबल। ट्रू ट्रू मीन्स ट्रू, ठीक है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉजिक गेट जो है और वो थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, और का जो ट्रूथ टेबल था बाद में एंड उसके बाद नॉट था, करेक्ट? यूनिट फर्स्ट, लास्ट टॉपिक, रिमेम्बर? याद आ रहा है कुछ? लॉजिक गेट्स, yes 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 exactly। so that was a two values in front of operator means लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट के पहले और पीछे जो भी वैल्यूज रहती थी और बीच में लॉजिक गेट रहेगा, उससे जो जनरेट होने वाली है, इनपुट दोगे आप, दो इनपुट दोगे और एक आउटपुट मिलेगा। so that output is depend on the truth table, right? so similarly we are having greater than or equal to। so equal to जब भी आप बोलोगे, in that case we have to use the or operator or logic gate, और logic gate में जब भी true true रहता है दोनों वैल्यूज ट्रू है, द आउटपुट वी विल गेट एज अ ट्रू। फॉल्स फॉल्स अगर है तो आउटपुट विल बी द फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, ठीक है, तो आउटपुट क्या रहता है? ट्रू रहता है। और फॉल्स ट्रू है तो भी आउटपुट ट्रू ही रहता है, ठीक है। तो वो हम कैसे समझेंगे? यहाँ से समझेंगे कि 4.5 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये लेस देन तो नहीं है फॉर श्योर। 4.5
लेस देन 10 अगर हम बोलते थे, so this statement is a false statement, correct? But if we say that 4.5 is less than or equal to 10, then we can say that it is a true, because the first result which will be generated by the less than sign, that is a false, और उसके बाद और का लॉजिक गेट लगेगा क्योंकि उसका मीनिंग ही वही है, लेस देन, इक्वल, लेस देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू जब भी ऑपरेट हो जाएगा यहाँ पे, then this statement becomes true. Now here -35 is greater than 0, ये false है। -35 greater than 0 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 के बाद जो भी है -1 -2 वो सब छोटे हैं, 0 0 के आगे सब बड़े हैं, ठीक है, नंबर सीरीज अगर हम देखते हैं तो। देन इक्वल टू है क्या -35 0 के साथ? नो, इन दैट केस बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा कि लेस देन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इक्वल टू की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसलिए वो फॉल्स हो गया। लेटर ऑन 4.5 लेस देन -10, 4.5, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, ठीक है, 4.5 लेस देन -10। नाउ इन दैट केस इज इट ट्रू और फॉल्स? 4.5 छोटा है -10 से कि बड़ा है? बड़ा है, ठीक है, हाँ छोटा है। साढ़े 4 रुपए दे के आप कुछ खरीद सकते हो, मगर -10 रुपए दे के आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, कोई देगा ही नहीं आपको। ये सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने मेरे स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता था कि -10 रुपीज अगर किसी को देने हैं तो आप दोगे कैसे? नहीं दे सकते हो, ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है। but 4.5 rupees that we can give, so simply 4.5 is greater than -10, but यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है कि 4.5 less than -10, so this is a false statement, right? Then 10 is less than 7 plus 5, is it true or false? okay, ये false है कि ट्रू है? तो ट्रू वाला है एक ही जन है, फॉल्स वाले 2-3 जन दिख रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। सो 7 प्लस 5 इसकी एडिशन होगी कि क्या होगा? एनीवन? उसी पे उसके नीचे ही दिया हुआ है कुछ तो भी, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये एक्सप्रेशन दिया है उन्होंने, इसके ऊपर से हमको ऊपर का एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये अगर ट्रू है तो कब ट्रू होगा? ओनली इफ द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ c एंड d, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कंपेयर करते हो तो ये कौन सा ऑपरेटर है जो हाईलाइट किया है? एनीवन? लेस देन मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर, करेक्ट। और ये जो ऑपरेटर है ये कौन सा ऑपरेटर है? मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। तो ये लेस देन यानी रिलेशनल ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो यहाँ पे कंपैरिजन जब होगी तो पहले नंबर के साथ कंपैरिजन होगी, 10 लेस देन 7, 10 लेस देन 7, क्योंकि 7 प्लस 5 ये वैल्यू 13 होती है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। बट इज दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन सम वेरिएबल? किसी वेरिएबल में स्टोर की हुई है क्या वो? नहीं। यहाँ पे अगर इक्वल टू साइन कहीं पे भी नहीं है और कोई थर्ड वेरिएबल नहीं है इन दोनों को स्टोर करने के लिए, तो उसको आप 13 नहीं जनरेट कर सकते कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर रिक्वायर्स some variable should hold that value 13 and then it will compare with the 10। 10 हमने लिखा है तो उसका कोई ना कोई वेरिएबल होगा ही, वहां पे स्टोर किया ही होगा हमने, ठीक है। बट अगर आप इसको अगर जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ये फॉल्स है, इन दैट केस 10 is stored in some variable, 7 is stored in another variable and 5 is also stored in another variable,
लेट सपोज दैट 10 स्टोर्ड है ए वेरिएबल में, ए इज लेस देन बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू डी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, b प्लस सी इक्वल टू डी, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड रिलेशनल, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, इन दोनों का प्रेसिडेंस देखा जाता है। प्रेसिडेंस मीन्स किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ए या फिर वेरिएबल है ये ए, तो उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने वाला है, दैट्स व्हाई द प्रेसिडेंस मीन्स इंपॉर्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ द बी प्लस सी। तो अब बी प्लस सी जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होने वाली है, तो वो प्रोसेसिंग होकर रिजल्ट डी में स्टोर होगा, एंड वंस द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन डी, देन एंड देन वी कैन कंपेयर विद द ए। अदरवाइज आप ये तीन चीजों को कैसे क्या कंपेयर करोगे, ए की कंपैरिजन बी के साथ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी सी के साथ ऐड होने वाला है, ए की कंपैरिजन सी के भी साथ नहीं कर सकते हो, ए की कंपैरिजन आप सिर्फ डी के साथ कर सकते हो क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट रहेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द डी वेरिएबल। दैट्स व्हाई व्हेन वी वांट इट इज फॉल्स, in that case we have to use this kind of a structure. In the previous case 10 less than 7 plus 5, it will consider only the 7, so 10 less than 7, that statement is true, plus 5 if you want, then we have to add one variable and store their data, right? Yes, 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 है इसका इसका प्रेसिडेंस रूल है, वो हम आगे देखने वाले जब ये पूरे ऑपरेटर हो जाएंगे, स्पेशल ऑपरेटर लास्ट ऑपरेटर है हमारा, तो वो जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर वो देखना है कि किसका प्रेसिडेंस पहले आएगा, क्योंकि मल्टीपल ऑपरेटर्स अगर एक ही एक्सप्रेशन में यूज होते हैं, इन दैट केस विच ऑपरेटर ऑपरेटर विल गेट एक्सेस फर्स्ट एंड इवेल्युएटेड फर्स्ट, तो वो आपको प्रेसिडेंस में पूरा डिटेल में मिल जाएगा। क्योंकि मैथ्स में बॉड मास है तो यहाँ पे भी उनको वो लगाना ही पड़ता है एक रूल, उसके तीन चार रूल्स हैं, दैट वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ ऑपरेटर, राइट। हम्म, नहीं अब वो डिपेंड करता है आपको कंपैरिजन किस में करनी है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैंने जो लिखा था ये वैसे इनवैलिड है, इसके पहले जो मैंने ये चीज लिखी थी ये इनवैलिड है, ये बस एक्सप्रेशन समझाने के लिए मैंने लिखा था कि आपको फॉल्स अगर स्टेटमेंट चाहिए, इन दैट केस वी हैव टू डू द एडिशन ऑफ अ बी प्लस सी, तो उसको आप पहले यहाँ यहाँ ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्टेटमेंट, इसके पहले आप बी और सी को ऐड कर लो, उसको डी में स्टोर कर लो, एंड देन ए इज लेस देन डी, वो आप चेक कर सकते हो, राइट। तो ये करने के लिए ये सारी चीजें मैंने एक कर दी है, वैसे ये एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, यानी ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा एज इट इज, ठीक। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि बी प्लस सी, इसको आप अगर अलग तरीके से यानी अलग अलग यानी 7 और 5 ऐसे अलग तरीके से उसके सामने अगर रखोगे, तो उसको ऑपरेट करते टाइम पे पहली वैल्यू लेगा, दूसरी वैल्यू नहीं लेगा, उसको ऐड नहीं करेगा वो, ठीक है, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए कुछ तो जगह लगेगी, तो वो जगह अगर नहीं है या फिर वो वेरिएबल नहीं है तो वो कंपेयर नहीं करेगा 10 को, 10 के साथ वो कंपैरिजन नहीं हो सकती है। एवरीथिंग रिटर्न इन योर प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम में लिखते हो, इट शुड बी स्टोर्ड समवेयर, ठीक है। बट रन टाइम में भी आप इनपुट दे सकते हो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू अगर फिक्स कर दी है, वेरिएबल की वैल्यू अगर 10 फिक्स कर दी है, एंड लेटर ऑन वी वांट टू चेंज इट, प्रोग्राम में नहीं चेंज करनी है, मगर आपको प्रोग्राम जब रन होता है तब चेंज करनी है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, बट उस प्रकार से यूजर डिफाइंड फंक्शन आपको पहले आपके प्रोग्राम में लिख के रखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप अभी मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ था,
मैंने अपनी क्लास के एक बच्चे का स्टूडेंट्स का पेपर चेक किया, उनका सेम मैं वही एग्जांपल देता हूँ, तो उनको भी लगता होगा कि सर मेरा ही एग्जांपल देते हैं, बट आई विल नॉट कोट हर नेम। बट प्रॉब्लम ये हो गया था कि पहला पेज स्कैन हो गया था, बाकी कुछ भी नहीं हुआ था, वही अपलोड हो गया था। तो मैंने पूरा डेटा चेक कर लिया, सबके पेपर चेक हो गए, सब हो गया, ठीक है। बाद में मुझे पता चला कि यस, उन्होंने पेपर उसके आगे भी लिखा होगा, ठीक है, बट वो अपलोड नहीं हुआ। तो बट मैंने मार्क्स दे दिए थे, 7 मार्क्स उनको चले गए थे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मार्क्स, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। वैल्यू ऑफ मार्क्स इक्वल टू 7, ये वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो चुकी थी। वो जो सॉफ्टवेयर है एलएमएस, उसका जो टूल था जिसमें मुझे मार्क्स डालने थे, उसमें 7 वैल्यू स्टोर हो गई थी, ठीक है। लेटर ऑन मैंने जब उसमें उनको फिर से एक फ्रेश कॉपी अपलोड करने के लिए बोली पेपर की, एंड आफ्टर द परमिशन ऑफ इंचार्ज, उनसे परमिशन लेके उनको प्रॉब्लम पूरा बता के, सो उसके बाद मैंने फिर से उसको इवेल्युएट किया। देन आई क्लिक टू दैट पर्टिकुलर मार्क्स, ठीक है, एंड रिमूव इट, एंड वहां पे मैंने 14 कर दिए, ठीक है, पूरा पेपर इवेल्युएट होने के बाद, ठीक है। अब ये 14 करते टाइम मैं जब उसको सेव कर रहा हूँ, तो जो प्रीवियस वैल्यू थी 7, उसको ये 14 क्या कर देगा, ओवर राइट कर देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये 7, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 14 लिख रहा हूँ, 14 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो ऑपरेशन अभी आपने देखा कि वहां पे 14 था, 14 के बाद इमीडिएटली बिना लिखे हुए वो 7 हो गया कॉपी पेस्ट से। इट इज द कंसेप्ट ऑफ ओवर राइटिंग, ठीक है, ओवर राइट हो गया, ठीक है। तो वैसे ही वहां पे वेरिएबल ओवर राइट हो जाएगा। बट ये कब हो रहा है, जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, एक्टिव है प्रोग्राम, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने उस सॉफ्टवेयर के एलएमएस पोर्टल के जो भी कोडिंग था उसमें जाके मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े, ठीक है। ऐसा बहुत बार हम करते हैं। आप ये रिसेट करते हो क्या, पासवर्ड, पासवर्ड रिसेट करते हो, वो भी डेटाबेस में स्टोर होता है। इसके अलावा बहुत से ऐसी चीजें रहती है जो न्यूमेरिकल, हम बाकी चीजें नहीं कंसिडर करेंगे, जैसे फेसबुक पे लाइक शेयर कमेंट वगैरह, ये जो चीजें है दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट। बट नंबर्स के रिलेटेड, जैसे पासवर्ड रिसेट करना है, बाद में आप अगर किसी को अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है, बिफोर द ट्रांजेक्शन विल बी मेड, बीच में आपको पूछता है कि आर यू श्योर टू ट्रांसफर दैट मच ऑफ अमाउंट, और वहां से अगर वापस आ गए हम, तो वो आपको वापस एडिट करने देता है। तो ये जो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कम्प्लीटली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं, एक ही फंक्शन नहीं, बट वो आपको एडिट करने देता है। सो दैट मेड पॉसिबल, जैसे मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, पीडीएफ में एडिट कर सकता हूँ क्या, नहीं, डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकता हूँ उसको, पीडीएफ को मैं एक्सेल को एडिट कर सकता हूँ, वर्ड को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। जो या फिर जो जेपीजी है, जेपीजी में मैंने अगर कुछ लिख के रखा तो उसको एडिट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा either in the word format or something else, then I can edit that particular jpg, or I have to open that jpg into the paint, ठीक। तो ये एडिटिंग ऑप्शन मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ मेमोरी, ठीक है। तो ये मैं जो पूरा कंसेप्ट जो आपको बता रहा हूँ, इट इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद द मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। तो प्रेसिडेंस का जो आपने पूछा है सर्वेश, तो दैट विल बी डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स। बट उसमें रूल्स है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा, कौन से ऑपरेटर का नंबर सबसे आखिरी में आएगा, दैट इज ऑल्सो द रूल्स आर डिफाइंड, राइट। नाउ when arithmetic expressions are used on either side of a relational operator, जहाँ पे वो उन्होंने बोला है कि either side, दो में से एक कोई भी साइड में, the arithmetic expression will be evaluated first and then the result will be compared, that is arithmetic operator is having the high priority over the relational operator, ठीक है। ये मैंने अभी इसके पहले बताया था, but make sure that कि ये जो चीज मैंने बताई है, ये एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होता है, हाँ, ऐसा एकदम से आप उसको इक्वल टू वगैरह उसी में प्लस भी उसी में, ऐसा नहीं होता है वो, ठीक है। इसको आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, तभी वो सी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एंड वी नो दैट कि सी को प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वॉइड मेन, इंटीजर मेन,
हैश इंक्लूड stdio.h, इसका स्मॉल वर्जन मीन्स अपर केस लोअर केस भी नहीं चलता उसको, यानी कम ज्यादा अगर हो गया, ठीक है। तो इट इज अ केस सेंसिटिव, सी लैंग्वेज इज एक्चुअली केस सेंसिटिव है। अगर उसमें आप कोई फाइल का नाम भी लिखते हो कैपिटल में और उसको रन करते टाइम उसको स्मॉल से स्मॉल केस लेटर से उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। So in this case, the first arithmetic operation will be evaluated and then later on it will be compared with the one of the operands. Then relational operator or the relational expressions are used in decision statements such as if and while to decide the course of action of a running program. अब ये जो स्टेटमेंट्स है यानी रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो ये हम यूज करते हैं इफ एंड व्हाइल स्टेटमेंट्स में। ये दो टाइप्स के स्टेटमेंट्स है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू स्टेटमेंट्स और बहुत सारे हैं, इफ एल्स है, डू व्हाइल है, बाद में फॉर है, तो ये जो अलग अलग स्टेटमेंट्स है दैट ऑल आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ अ टास्क विद द हेल्प ऑफ अ सी प्रोग्राम। जैसे मुझे मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो इनका इनमें से कुछ ऐसे बच्चे निकालने हैं कि जिन्होंने कल टेस्ट नहीं दी है, राइट। अभी फिलहाल कितने प्रेजेंट है? 54 प्रेजेंट्स है, ठीक है। ओके ओके सर्वेश सर्च 54 52 54 प्रेजेंट्स है, 54 प्रेजेंट्स है, ओके। सो आउट ऑफ 54 ऑलमोस्ट 40 44 42 के आसपास कुछ बच्चों ने टेस्ट दी है, ठीक है। और जो बचे हुए जो बच्चे हैं उन्होंने टेस्ट नहीं दी है, राइट। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दैट देयर नेम्स, करेक्ट। अगर वो मुझे निकालने हैं तो आई कैन यूज इफ पीडीएफ इज सबमिटेड, ठीक है, ये जनरलाइज बता रहा हूं मैं। इफ द पीडीएफ इज सबमिटेड देन नो असाइनमेंट, एल्स नीचे आएगा एल्स का पार्ट, यानी ऊपर का पार्ट अगर ट्रू है तो असाइनमेंट नहीं देनी पड़ेगी। अगर ऊपर का पार्ट यानी इफ का पार्ट अगर फॉल्स है then else part will be execute, you have to submit the assignment, ठीक है। अब उसमें कुछ बोल सकते कि सर मैं बाहर गया था, मैं ये हुआ था वो हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, ठीक है। तो 2 से 3 बच्चों ने मुझे कॉल करके बताया था कि सर आई हैव अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई विल नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट, आई विल अपीयर टुमारो। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज भी आया था, तो उन्होंने भी बताया कि सर मुझे मेडिकल इमरजेंसी है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मैंने बाहर हूँ, तो उसकी वजह से मैं टेस्ट नहीं दे सकता। For them it is exempted, ठीक है, they will appear the test today, okay, but those are having no problem, ठीक है। इंटरनेट इश्यू भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट those are having no problem, they will lie under the else section। if सेक्शन क्या रहेगा, तो if में रहेगा कि अगर आपने टेस्ट दी है then you don't have to submit the any assignment, अगर नहीं दी है in that case you have to submit the assignment, right। ये हो गया इफ का। तो यहाँ पे भी मैं क्या चेक कर रहा हूँ, रिलेशन चेक कर रहा हूँ। सो रिलेशन एक्सप्रेशन इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग अ डिसीजन स्टेटमेंट्स लाइक इफ एंड व्हाइल, ठीक है। यस यस यस। नाउ इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द रिलेशन, हमको अगर रिलेशन एक्सप्रेस करना है इन बिटवीन टू पार्टीज मीन्स वन पार्टी दैट बिलोंग्स टू, जिन्होंने असाइनमेंट्स दे दिए, पार्टी नहीं बोल सकते हम उसको, ग्रुप बोल सकते हैं। वन ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव सबमिटेड द टेस्ट, असाइनमेंट नहीं टेस्ट, कल की जो टेस्ट हुई थी तो वो उन्होंने दे दी। दैट वन ग्रुप इज नॉट अपीयर्ड टू द टेस्ट एंड थर्ड ग्रुप इज ऑल्सो देयर, दे आर विलिंग टू do the test but due to some reason, due to some emergency they are unable to appear, so they are exempted, ठीक है। उनको टेस्ट होगी, उनकी टेस्ट डेफिनेटली होगी, बट वो एग्जम्प्टेड है, उनको असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये जो दो पार्टीज हैं
इसमें से वो 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 का जो ग्रुप है, सो दैट ग्रुप, अगर इसमें से किसी ने टेस्ट नहीं दी होंगी, ठीक है, तो दे हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। बट उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट दी हुई है, उनका पीडीएफ अपलोडेड है लिंक पे, एंड दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द ग्रुप डिस्कशन, सो दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द असाइनमेंट। बट जिन्होंने टेस्ट नहीं दी है कल की, दे विल फॉल अंडर द पार्ट ऑफ एल्स पार्ट, ठीक है। एल्स पार्ट में वो आएंगे और एल्स पार्ट विल से दैट इफ दे आर नॉट present yesterday's test, then in that case they have to produce the assignment, उनको assignment लिखनी पड़ेगी, ठीक है। so that is what a comparison, दो ग्रुप में हमने कंपैरिजन किया। अभी सेम एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि 3 नंबर हैं ए बी सी, 3 नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है, ये भी अगर हमको निकालना है, in that case we have to use the relational expression, right? ये हमारे प्रैक्टिकल देखा है सबने, लैब मैनुअल देखा है सबने। तो उसमें एक प्रोग्राम होगा, आपको दिखाई दिया होगा, in that particular manual we have one simple program in which we are comparing the 3 numbers with each other। 3 नंबर्स को हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सो फर्स्ट कंपेयर विद द सेकंड, then second compare with the third, and we will find out that which one is the largest one, right? Then second compare with the third or the first, okay, and then we will get the second largest one, and then later at the end finally जो भी तीसरा बचेगा, so that will be the smallest one। कुछ मिस्टेक्स थी इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक्स वगैरह थी रिगार्डिंग टू अल्गोरिदम, ठीक है। 1 2 3 4 में कुछ तो भी गड़बड़ थी, तो वो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक में टाइपिंग करते करते हो जाता है। फर्स्ट वन इज एडिशन सब्सट्रैक्शन, देन सेकंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग इफ एल्स, जो मैं इफ एल्स बता रहा था सर्च, सो दैट वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड देन देयर इज अ स्टेप 4, देयर इज नो स्टेप 4 अपना 5 एंड 6, 5 और 6 कुछ नहीं है। तो पहला जो ये प्रोग्राम है, इज इट विजिबल क्लियरली? Okay, so the first line that hash include stdio.h void main, then integer abc, we require the integer numbers abc, their values will be taken from the user, enter the value of a b and c, user enter करेगा। for example यूजर ने अगर एंटर कर दी वैल्यूज, ट्वेंटी 12 29, ठीक है। तो ये वैल्यू है ए, बाद में बी, बाद में सी, राइट। नाउ what the program says, it will read with the help of a scanf function। scanf function क्या करेगा, ये तीनों वैल्यू को रीड करेगा। यूजर ने वैल्यूज दे दी 20 12 एंड 29। नाउ फर्स्ट relational operator that is used as a greater than sign is used over here। now how it will work, if जर, मराठीत म्हणतो आपण जर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते रिया? इफ, रिया, हाँ, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे इफ
ए इज ग्रेटर देन बी, ये पहली कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू क्या है 20, ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्या हमारे इसमें? ट्वेंटी इज ग्रेटर देन 12, इज इट ट्रू? यस और नो? Yes or no? 20 is greater than 12. Is it true or false? Sir, definitely true. 20 is greater than 12. ये true है। तो यहाँ पे A और B का जो रिजल्ट आएगा that is first result, इसको मैं पैरेलल में लिखता हूँ यहाँ पे, इसके पैरेलल में it is a true, ठीक है। और उसके बाद में है एक एंड ऑपरेटर और एक डबल एंड ऑपरेटर, ठीक है। नाउ A is greater than C, A की वैल्यू है 20, 20 is greater than C, means 20 is greater than 29, is it true? It is false, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, yes it is a false, पहला स्टेटमेंट जो है, in that case what happen, if true logical and false, ठीक है, ये false है, ठीक। तो एंड जो था अपना ऑपरेटर, ऑपरेटर नहीं उसको बोलते थे हम लॉजिक गेट, एंड ऑपरेटर, उसका ट्रूथ टेबल अगर हमको याद आता है, सो हमने वहां पे देखा था ट्रू ट्रू, ट्रू रहता था, ट्रू फॉल्स, पूरा सर के ऊपर से चला गया तो ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू अगर है तो ट्रू रहेगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, करेक्ट। अब जब ट्रू फॉल्स रहेगा तो क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा, फॉल्स ट्रू रहेगा तब भी फॉल्स ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये ऑपरेट कैसे होता है। हाँ यस, हाँ यस यस, ये हम, यस यस यस, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर लॉजिकल एंड हम यूज कर रहे हैं, इन दैट केस वी हैव टू यूज ट्रूथ टेबल ऑफ अ लॉजिकल एंड, और उसमें ट्रू ट्रू जब रहता है तो ट्रू रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स फॉल्स जब रहता है तो फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट। एंड उसके बाद क्या होगा, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये दो कंडीशन बचती है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके देता हूँ, ट्रू ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू, देन ट्रू फॉल्स, देन रिजल्ट इज फॉल्स, ये मैं एंड के बारे में बोल रहा हूँ, राइट। फॉल्स, देन ट्रू, result is false, and when there is a false, in that case result, result क्या रहेगा, false, करेक्ट। इसके एग्जैक्टली अपोजिट हमने और के बारे में देखा था, और को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये साइन यूज की जाती है और के लिए, ये पॉज वाली जो साइन रहती है ना, जब हम वीडियो प्ले करते हैं तो बीच में पॉज वाली जो साइन रहती है, दैट पॉज साइन इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट विद द और की जो साइन है वो ऐसे ही रहती है, ठीक है। देन अब यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल के साथ कंसिडर करेंगे, ये हमारा इनपुट है, दिस वन इज इनपुट फॉर द लॉजिक गेट, देन दिस वन इज द आउटपुट, ठीक है। नाउ व्हेन देयर इज अ ट्रू एंड फॉल्स, मीन्स ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है, 20 इज ग्रेटर देन 12, बट ए इज नॉट ग्रेटर देन 29, ठीक है। इस केस में जो प्रिंटफ स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं, परसेंट डी मीन्स ए वैल्यू दैट इज 20, 20 इज मैक्सिमम, ये प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये छोड़ दो, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है ये छोड़ दो, इसको डिस्कस मत करो, इसको अभी फिलहाल ध्यान में मत रखो, सिर्फ मुझे इस पर से बताओ, ए बी सी की जो वैल्यूज है इस पर से बताओ
कि ए बड़ा है क्या। हाँ, क्वेश्चन इज प्रिंटफ में बोला है उन्होंने कि परसेंट डी इज अ मैक्सिमम। परसेंट डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? वैल्यू ऑफ ए, राइट। ये जो परसेंट डी है ये किसके लिए स्टैंड करता है? वैल्यू ऑफ ए के लिए। तो वैल्यू ऑफ ए इज 20। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर 20 इज ग्रेटर देन बी एंड सी। बी और सी से बड़ा है क्या? 20 बी और सी से बड़ा है क्या? नो। हाँ नहीं, पहली कंडीशन हम देखेंगे कि ए इज कंपेयर विद द बी एंड सी बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि 20 इज ग्रेटर देन बी बट स्मॉलर देन सी, राइट। सो हमने जो इफ स्टेटमेंट लिखा था यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन एंड द लॉजिक गेट्स एंड, लॉजिकल एंड का यूज करके दो रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज किए और एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने यूज किया, लॉजिकल गेट हमने यूज किया, ऑपरेटर ने। एंड ये एक इफ स्टेटमेंट यूज किया, यानी तीन चीजों का हमने यूज किया। इफ स्टेटमेंट, ग्रेटर देन साइन फॉर्म अ रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल गेट, उसको हम बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, तो इन पूरे कॉम्बिनेशन में हमको ये पता चलता है कि पहली कंडीशन ट्रू अगर होती भी है तो भी आपका जो 20 है वो सी से यानी 29 से बड़ा नहीं है। इसलिए ये जो इफ स्टेटमेंट के नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट है प्रिंटफ वाला, वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो वो बोल देगा कि ए इज ग्रेटर, जो कि फॉल्स है। ए बी से ग्रेटर है मगर सी से ग्रेटर नहीं है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है? आउट ऑफ दिस थ्री नंबर्स विच इज द लार्जेस्ट नंबर। हमको तीनों की कंपैरिजन करनी है, सिर्फ एक की दूसरे के साथ नहीं, सबकी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करनी है। तो ये जो ब्लॉक है इफ वाला, ये समझ में आया है क्या? सहर्ष? सिंपली, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सिंपली ये जो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट यानी क्या होता है मैंने हमने देखा है हिंदी में अगर, मराठी में जर आणि इंग्लिश मध्ये ते इंग्लिश मध्ये इफच असतं। ठीक आहे, जर असं झालं तर, जर तरचा विषय हा इफ एंड एल्स, जर तर। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। अगर क्या होगा? ये होगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, 20 इज ग्रेटर देन 12, ये ट्रू है, दैट्स इट। यहाँ पे उसका रिजल्ट जनरेट होगा एज अ ट्रू। उसके बाद 20 इज ग्रेटर देन सी, पहले बी के साथ कंपैरिजन फिर सी के साथ कंपैरिजन 20 की। तो 20 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन इज ट्रू। 20 इज ग्रेटर देन 29, कंडीशन इज फॉल्स। तो रिजल्ट क्या बनेगा उनका दोनों का? ट्रू, लॉजिकल एंड फॉल्स। तो ट्रूथ टेबल में जब हम देख रहे हैं ट्रू फॉल्स जब रहता है, ठीक है, तो उस केस में रिजल्ट क्या आता है? फॉल्स आता है। तो जब भी रिजल्ट फॉल्स आएगा, इन दैट केस प्रिंटफ के नीचे जो भी लिखा हुआ रहेगा इमीडिएटली, इमीडिएटली प्रिंटफ के नीचे जो भी लिखा हुआ रहेगा वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, इफ के नीचे जो लिखा हुआ रहेगा, वॉट एवर द रिटर्न इनसाइड द इफ, that will not execute. Why? Because the result generated by that complete statement is false, right? इसको आप एग्जांपल से यहाँ से भी देख सकते हो कि 20 12 29, 20 12 से बड़ा है बट 29 से छोटा है। दोनों को जब आप क्लब करते हो तो रिजल्ट आता है फॉल्स, मींस ए इज नॉट मैक्सिमम। ए ए की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम नहीं है। अब उसके बाद का जो पार्ट है एल्स पार्ट, वो आपको चेक करने के लिए बताता है कि पहला नंबर आप 20 की कंपैरिजन आपने कर दी 12 के साथ और उसी 20 की कंपैरिजन कर दी आपने 29 के साथ, करेक्ट। ए इज कंपेयर विद द बी एंड ए इज कंपेयर विद द सी।
लाइक दिस, ठीक है। नाउ बी इज कंपेयर, ये जो बी है, हाँ, इस बी को हम कंपेयर करेंगे सी के साथ। बी इज कंपेयर विद द सी, क्योंकि पहले जब कंपैरिजन कर ली हमने तो हमको ये पता तो चल गया कि बी ए जो है ये बी से बड़ा है मगर सी से छोटा है। तो इस कंपैरिजन में हमको ये नहीं पता चला कि कौन बड़ा है, फाइनल मैक्सिमम कौन है वो नहीं पता चला। तो इसलिए हमने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया है। एल्स पार्ट सेज इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है तो, है क्या बड़ा, 12 इज ग्रेटर देन 29, इज इट ट्रू, इट इज फॉल्स, ठीक है, इट इज फॉल्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, जो भी प्रिंटेड, हाँ फॉल्स है, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, जो भी इफ स्टेटमेंट के नीचे आप लिख रहे हो, बी ग्रेटर देन सी वाला जो इफ स्टेटमेंट है उसके नीचे जो लिख रहे हो वो पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब भी फॉल्स रिजल्ट जनरेट होगा इफ स्टेटमेंट में, उसके नीचे का जो पार्ट रहेगा प्रिंट एफ स्टेटमेंट का वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अभी हमने एक ही कंपैरिजन बी और सी दोनों के साथ कर ली तो भी आपको मैक्सिमम नंबर नहीं मिला। अब बी की कंपैरिजन आपने सी के साथ कर ली तो भी मैक्सिमम नंबर नहीं मिला। इट मीन्स दैट ए और बी दोनों मैक्सिमम नहीं है, राइट। हम चेक करते हैं ना कि क्लास में जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले बच्चे रहते हैं उनके नाम पता रहते हैं हमको, 3 या 4 बच्चे रहते हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं अच्छा इसका सेकंड नंबर आ गया, उसका थर्ड नंबर आ गया, यानी पहला नंबर किसका आया होगा, ये दो ही लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, इनका पहला नंबर आया होगा। ये जो जजमेंट आप करते हो ये कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि कुछ लोगों का रिजल्ट आपको पता हो रहता है और कुछ लोगों का नहीं पता रहता है, फिर भी हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे हो रहा है, ए की कंपैरिजन बी और सी के साथ कर ली हमने और बी की कंपैरिजन सी के साथ कर ली। अब सी की कंपैरिजन बी और ए से करने की जरूरत है या नहीं है, सवाल समझ में आया। क्वेश्चन नहीं है, और बाकी बाकी लोगों को सवाल समझ में आया क्या। ओके, सो ए बी के साथ कंपेयर कर रहे हो, इट मींस दैट बी ए के साथ भी कंपेयर हो ही रहा है ना अल्टीमेटली, करेक्ट। सो उस हिसाब से सी की कंपैरिजन बी के साथ भी हो चुकी है और सी की कंपैरिजन ए के साथ भी हो चुकी है, तो सी अलग से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो एग्जांपल है जहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यू 20 12 29 ली है, वहां पे हमको पता चलता है कि पहला इफ जो स्टेटमेंट था वो मैक्सिमम नंबर नहीं ढूंढ पाया, दूसरा इफ स्टेटमेंट जो था वो भी मैक्सिमम नंबर ढूंढ नहीं पाया, और आखिरी में जो एल्स पार्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे वो मैक्सिमम नंबर ढूंढ पाएगा, क्योंकि एक ही नंबर बचा है, पहले दो नंबर अगर बड़े नहीं है तो आखिरी वाला नंबर बड़ा है, राइट। सो दैट स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड, एल्स वाला जो है रहेगा कि 29 इज अ मैक्सिमम, 29 को प्रिंट कर देगा, इज अ मैक्सिमम नंबर, correct. Now any confusion in this program, any query. Okay then, so that is a particular role of a relational operator or relational expression under the if। हमने अभी फिलहाल if else ही देखा, while भी हम देखने वाले हैं आगे के इसमें, right। Now last topic about that relational operator, relational operator complements, among the 6 relational operator each one of is a complement of another operator, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं इन जनरल टर्म, कॉन्वर्स बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं, या फिर उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, उल्टा बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ग्रेटर देन,
यहाँ पे ग्रेटर देन जो साइन है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इट इज completely opposite to that of greater than. A is greater than B means 10 is greater than 5, ये अगर हम बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10 is greater than 5 और यहाँ पे मैं अगर लेता हूँ 10 is less than 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 10 is greater than 5, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो रही है, ट्रू हो रही है, ट्रू के अपोजिट क्या होता है, फॉल्स, तो यहाँ पे 10 is less than और इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, हाँ यस, नहीं वही बता रहा हूँ ना कि 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये जो है इसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है, करेक्ट, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट में ग्रेटर देन और इक्वल टू रखूँ यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है, 10 ग्रेटर देन तो है, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ट्रू का कॉम्प्लीमेंट ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा, तो वो फॉल्स लाने के लिए आप, हाँ यस, वो फॉल्स लाने के लिए आपको यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ही लगेगा, राइट, then when we say that the 10 is greater than 5 is complement of a 10 is less than or equal to 5, यहाँ पे कंडीशन आपकी 10 is greater than 5 की ट्रू होने वाली है और उसके अपोजिट 10 is less than और equal to 5, 10 less than तो नहीं है 5 से और equal to भी नहीं है, in that case this condition becomes false. Similarly in both the next cases, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लेता हूँ 30 इक्वल टू इज इक्वल टू 30, ठीक है, और मैं यहाँ पे लेता हूँ 30 इज नॉट इक्वल टू 30, तो ये जो पहला पार्ट है ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू, एंड दिस पार्ट इज फॉल्स, सो सिंपली कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट द, उसका हम उल्टा जो भी रिजल्ट रहेगा वो, या फिर हम उसको एंटोनिम्स जो भी बोलते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एंटोनिम्स विरुद्ध, अपोजिट, लाइक दैट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशनल ऑपरेटर खत्म होता है, ठीक है, सो मेक श्योर दैट ये आपको याद नहीं रखना है बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, देन इन केस ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर, पहले दो ऑपरेटर जो थे उसमें हमने पहले अरिथमेटिक देखा, दूसरा रिलेशनल, थर्ड वन इज अ लॉजिकल ऑपरेटर विच इज क्वाइट इक्विवेलेंट विथ योर लॉजिक गेट्स, इसलिए उसका नाम भी लॉजिकल ऑपरेटर ही है. In addition to the relational operator, see as the following three logical operators. अब भी रिसेंटली हमने इसको यूज किया जिसको हम बोलते थे लॉजिकल एंड, ये जो प्रोग्राम देखा था हमने, हियर वी यूज द लॉजिकल एंड, ठीक है, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर अमॉन्ग द थ्री नंबर, या फिर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम परसेंटेज अमॉन्ग द थ्री स्टूडेंट्स परसेंटेज, तीन लोगों के परसेंटेज हमको पता है, उसमें से मैक्सिमम किसको है ये अगर हमको निकालने हैं, सो वी यूज द लॉजिकल एंड, करेक्ट, then there is a logical or and there is a logical not, that also we can use. The logical operator, logical and logical or, इसमें and बहुत बार आता है, ठीक है, are used when we want to test more than one condition and make a decision, ठीक है, अगर आपको मोर देन वन कंडीशन अगर चेक करनी है, ठीक है, जैसे मुझे चेक करना था ए के साथ बी की कंपैरिजन और ए के साथ सी की भी कंपैरिजन, यानी दो टाइप की चेकिंग मुझे करनी थी ए को कंपेयर करके बी एंड सी के साथ,
दैट्स व्हाई आई यूज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। मैं अगर यहाँ पे लॉजिकल और यूज करता था तो क्या इम्पैक्ट पड़ता था, कोई बता सकता है? यस, एग्जैक्टली। हाँ, पहला स्टेटमेंट ही प्रिंट हो जाता था और वो क्या बोलता था पता है क्या? 20 इज लार्जर देन 12, 20 इज लार्जर देन 29। ठीक है, ये ऐसा हो जाता था कि अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल एंड की जगह पे लॉजिकल और यूज करता था तो यानी जिसको 90% है उसका पहला नंबर नहीं आता था, जिसको 75% है उसका पहला नंबर आ जाता था। कभी सोचो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ठीक है, बहुत गलत हो जाएगा। यानी 90% वाले का नंबर कुछ भी नहीं है, रैंकिंग में भी नहीं है बेचारा, और 75 वाला का फर्स्ट रैंक है। ठीक है, ऐसा तो रिजर्वेशन के टेबल के थ्रू भी नहीं होता। सो दैट मे बी द पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ सिंगल रॉन्ग ऑपरेटर यूज्ड इन अ प्रोग्राम। मुझे लॉजिकल एंड यूज करना था, मैंने गलती से लॉजिकल और यूज कर लिया। जैसे और यूज करूंगा ये टेबल जो है ना आपका ट्रूथ टेबल, ये पूरा उल्टा हो जाएगा। उल्टा मीन्स ट्रू ट्रू ट्रूथ रहेगा, बट यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स 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 तो रहता ही है। ठीक है, यानी लगभग वो यहाँ तक के पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट विल बी चेंज। सो वी शुड डिसाइड फर्स्ट व्हाट वी रिक्वायर। हमको 3 नंबर को चेक करना है, इसका मतलब ये है कि दो में से एक अगर कंपैरिजन फॉल्स आती है तो रिजल्ट ट्रू नहीं आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। यही अगर समझो कोई एग्जांपल हमको लेना है, इसमें होगा ही समझो और का एग्जांपल कि अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन अगर, हाँ, अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास में, अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे कि उसने पेपर नहीं दिया। ठीक है, पेपर यानी यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं दिया। ठीक, पहली कंडीशन है स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, दैट मीन्स मैक्सिमम अटेंडेंस शुड बी 75%। ठीक है, आपकी अटेंडेंस क्या चाहिए? 75% एज पर द रूल्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो वो एक कंडीशन है, वो सेटिस्फाई हो जाती है, ट्रू हो जाती है, और उसने पेपर नहीं दिया। ठीक है, ये कंडीशन है फॉल्स कंडीशन। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ट्रू फॉल्स, मैं अगर लॉजिकल एंड लगाता हूँ तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा, यानी उसका पेपर बैक आ गया। करेक्ट? ये समझ में आ रहा है क्या एग्जांपल? हेलो, ये एग्जांपल समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है, उसने एग्जाम नहीं दी, फाइनल एग्जाम, वो रीजन कुछ भी हो, तो उसका पेपर निकलेगा क्या? नो। ठीक है, नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लॉजिकल एंड लगाया, इसके वजह से उसका पेपर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ट्रू फॉल्स आ गया। मैं अगर उसमें लॉजिकल और लगाता हूँ और कंडीशन ऐसे रखता हूँ कि स्टूडेंट ने 65% ही अटेंडेंस रखी, ठीक है, 65, 75 नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है? 75 की फॉल्स हो जाती है। ठीक है, बट उसने पेपर दिया और उसका पेपर निकल गया। स्टूडेंट अटेंडेंस इज लेस देन 75, उसने पेपर अटेम्प्ट किया और उसका पेपर निकल गया। भले ही एक बार ऐसा हो सकता है कि उसको इंटरनल बहुत कम मिले क्योंकि उसकी अटेंडेंस 65 है, 75 नहीं है। तो जनरली इंटरनल जो मिलते हैं 17-18 के आसपास मिलते हैं, तो उसको इंटरनल देने जो भी फैकल्टी उन्होंने 10 या 12 दे दिए क्योंकि उसकी अटेंडेंस बहुत कम थी। बट बच्चे ने पढ़ाई की अच्छे से, पढ़कर जितने भी क्वेश्चंस उसको आते थे वो अटेम्प्ट किए,
और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही स्कोर्स मोर देन 40 मार्क्स, 40 ही पासिंग है हमारी, 10 मार्क्स तो उसको ऑलरेडी मिल गए हैं इंटरनल में से, अब उसको 30 ही मार्क्स निकालने हैं, बट उसने 40 निकाल लिए और वो पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लॉजिकल एंड लगाता हूँ कि उसने 65% अटेंडेंस है, 75 का रूल वहां पर वायोलेट हो गया, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सेकंड कंडीशन ये थी कि उसने पेपर दिया, यस पेपर दिया उसने, तो वो ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे मैं लॉजिकल एंड लगाता हूँ तो वो फेल बताएगा, बट वो स्टूडेंट्स फेल नहीं है, इसलिए मुझे वहां पे लॉजिकल और लेना पड़ेगा, यानी फॉल्स ट्रू, ये दो कंडीशन है तो उसमें से वो ट्रू लेगा। पेपर दिया है ना, तो पेपर निकल गया तो पास हो गया, राइट। हैव यू अंडरस्टूड द एग्जांपल ऑफ और? हाँ, तो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द रिजल्ट वी रिक्वायर, और उसके हिसाब से फिर लॉजिकल एंड लेना या फिर लॉजिकल और लेना, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, करेक्ट। नाउ shortly we will complete this part. In addition to the relational operator, we have a three operators. Now here in the example, a is greater than b, जैसे अभी हमने देखा लॉजिकल एंड x इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिखना एंड x इक्वल टू 10 लिखना, इसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं है? एनीवन? x इक्वल, ओके ऐसा नहीं है वो। हाँ, और कोई? Okay, let me explain. When we say that x equal to 10 means 10, that integer value will be stored in the x variable, बराबर है, ये हमको सबको पता है x इक्वल टू 10 यानी x की वैल्यू 10 है, करेक्ट। इसमें किसी को कोई शक, कोई गुंजाइश? एनीवन? नो, ओके। So in that case x equal to 10 means 10 is stored in the variable x. Now when I say x is equal to means double equal to is equal to 10, that it means value of x must be 10, तभी आप बोल सकते हो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल टू है। मैंने तभी बताया था आपको कि इक्वल टू ऑपरेटर मीन्स इज इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर अ कंपैरिजन, it is a comparison purpose operator. Single equal to operator is used for a assignment, वो आगे देखने वाले हैं हम। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू असाइन करेगा, करेक्ट, जो वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि किसी ने क्रिकेट खेलते टाइम पे 100 रन बना लिए, तो उसके नाम के आगे, फॉर एग्जांपल विराट कोहली, उसके नाम के आगे क्या आएगा? 100, उसने एक सेंचुरी मार दी तो एक काउंट बढ़ जाएगा उसका। उसने अगर फॉर एग्जांपल 26 27 कुछ सेंचुरी की होगी, उसमें एक काउंट बढ़ जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। वंस इट विल बिकम अ 28, अगर कोई प्लेयर है इंडिया से या फिर पूरे क्रिकेट वर्ल्ड से, उसने भी 28 सेंचुरी मारी है, ठीक है, उसके करियर में, तो उसका रिकॉर्ड और इसका रिकॉर्ड क्या हो गया? इक्वल। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल टू, इज इक्वल टू। तो उसने उस रिकॉर्ड को क्या कर दिया? मैच कर दिया। अब समझ में आया? रिकॉर्ड को मैच होना, इट इज इक्वल टू, और सिंपल एक, अगर उसने सेंचुरी अगर मारती है, सेंचुरी अगर उसने कंप्लीट कर ली है, देन इट विल इंक्रीज द वन काउंट एंड दैट काउंट विल बी असाइन टू हिज नेम, राइट। So with that expression, an expression is a kind of this kind which combines the two or more relational expression is termed as a logical expression or the compound relational expression. अब जैसे इसमें
ग्रेटर देन साइन है तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, डबल इक्वल टू यानी इज इक्वल टू है तो वो भी रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, और ये जो लॉजिकल एंड उन्होंने यूज किया है ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। यानी दो अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर अगर आप एक इसमें यूज कर रहे हो सो इट इज कॉल्ड एज आइदर लॉजिकल एक्सप्रेशन और अ कंपाउंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे कंपाउंड वर्ड आ जाता है यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है। लाइक the simple relational expression, a logical expression also yields a value of 1 or 0 according to the truth table shown in below. उसकी values जो हमने पहले देखी है वही रहेगी as a values of a logic gates. The logical expression in above is true only if a is greater than b is true and x is equal to 10 is true. If either or the both of them are false, the expression is false. यानी ऊपर का जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है दिस एक्सप्रेशन, अगर दोनों ट्रू है देन इट इज ट्रू, दोनों फॉल्स है देन इट इज फॉल्स, वो हमको ऑलरेडी पता है। सम एग्जांपल्स आर देयर, इफ द एज इज ग्रेटर देन 55, इसको हम 45 ले सकते हैं, 45 एंड सैलरी इज लेस देन 1000, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, वैक्सीनेशन, 45 का एज और वैक्सीनेशन, ये भी एक चीज आप ले सकते हो। अदरवाइज एज इज 55 उससे बड़ा है तो सैलरी क्या है इस हिसाब से, तो दो में से क्या, अगर लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो दोनों में से एक फॉल्स अगर रहता है तो रिजल्ट फॉल्स जनरेट होगा, और लॉजिकल और अगर यूज कर रहे हो तो दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया नंबर इज लेस देन 0 और नंबर इज ग्रेटर देन 100, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100, तो कोई भी नंबर दे दो आप 100 से ऊपर वाला, 101, तो नंबर इज लेस देन 0, 101 लेस देन 0 है क्या, नहीं, फॉल्स हो गया कंडीशन पहली वाली। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, नंबर 101 इज ग्रेटर देन 100, यस ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। नो हियर a small table, truth table is there, non zero first operand operation जो है that is a non zero and second भी non zero, then the value of expression with a logical and that will be the 1, non zero that will be the 1 और में भी 1 ही आएगा। अब यहाँ पे नॉन जीरो है और जीरो है तो एनीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड, ये जो एंड और है ना, तो एंड को आप एक्सप्रेस करते हो प्लस में, एंड को आप एक्सप्रेस करते हो प्लस में या फिर मल्टीप्लिकेशन में, ए डॉट बी, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो एंड को आप जब मल्टीप्लिकेशन में यूज करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग रिजल्ट क्या आएगा, 0। यहाँ पे वही हो रहा है, ये जो आगे के तीनों कॉलम्स है, तीनों रोज है, ठीक है, कॉलम नहीं रोज है, 0 मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो रिजल्ट इज 0, नॉन जीरो और फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो अगेन 0, 0 0 0, ये हो गया आपका लॉजिकल एंड। तो एंड को आप मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करो, यानी है ही वो, तो इसकी वजह से आपका रिजल्ट जो बनेगा 0 आ गया तो पूरा रिजल्ट 0 बन जाएगा। बट लॉजिकल और में वैसे नहीं होता, नॉन जीरो दोनों वैल्यूज है तो 1 आएगा, दो में से एक नॉन जीरो है तो भी 1 आएगा, और जब दोनों जीरो रहेंगे तो 0 ही रहेगा। ट्रुथ टेबल समझ में आया, यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं लिया उन्होंने, ट्रू फॉल्स अगर ले रहते तो थोड़ा सा इजी जाता था, उन्होंने 0 1 नॉन जीरो 0 नॉन जीरो 0 के फॉर्मेट में लिया, इसलिए थोड़ा अलग है ये, राइट। सो अप टिल we have completed the three operators, first one is, कोई बता सकता है, arithmetic, second relational, third one
logical operator, exactly. And the last